Hello, dear students and teachers. Good evening and welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss about the programming constructs, various techniques of programming, various principles of programming. So here are three constructs or three principles of programming. Any language can be programmed using these three constructs or three principles of programming. ये आपकी यू कैन से दीज आर द सोल ऑफ प्रोग्रामिंग, यू कैन से सोल ऑफ प्रोग्रामिंग, आत्माएं हैं ये प्रोग्रामिंग की. नंबर वन सीक्वेंशियल, नंबर टू सिलेक्शन, नंबर थ्री इटरेशन. ये तीन कंस्ट्रक्ट्स में से हम लोग इस वीडियो में दो कंस्ट्रक्ट्स कवर करेंगे, सीक्वेंशियल एंड सिलेक्शन. सो दिस टॉपिक इज बेसिकली useful for informatics practices students as well as computer science students of class 11th and 12th too. So let us discuss one by one. First of all, we should know what is flow of control. Flow of control in any programming language means how control executes the programming statements. Although it follows top-down approach while a program executes, but as per the concept of programming, the control within the program can flow in three different ways. तीन तरह से हमारे प्रोग्राम में कंट्रोल फ्लो कर सकता है. सभी को पता है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल उसमें फ्लो करता है टॉप से बॉटम की तरफ, लेकिन टॉप से बॉटम की तरफ एग्जीक्यूट होने में भी देयर आर थ्री ब्रांचेस, यू कैन से there are three different ways how control can flow within the program during execution. Number one sequential, number two selection or decision, that is also called as branching, number three iteration or looping. So let us understand it one by one. Here, number one sequential. Sequential construct means it states that all statements within a program are executed in sequential manner one after the other, following top-down approach, as in the following diagram. See here, suppose there are three statements in a program. If they execute one after the other, first statement is executed, then second statement, then third statement, then fourth statement, and so on up to the end of the program. So it is pure sequential approach is being followed during the execution of the program by the executor program, by the interpreter. Okay, तो इस तरह की सिचुएशंस जहां पर आपका प्रोग्राम टॉप से लेकर के बॉटम की तरफ one after the other all statements are executed, such situation, such construct is known as sequential construct. कोई भी फॉर्मूला बेस्ड कोडिंग है तो वो सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट के अंदर आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं. जैसे आपने इनपुट किया, आप स्पीड निकालना चाहते हैं, स्पीड ऑफ द बॉडी, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस इनपुट करेंगे, टाइम इनपुट करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और स्पीड को प्रिंट कर देंगे सिंपली. देयर इज नो ब्रांचिंग, देयर इज नो इफ देन, देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम. So that is what called as sequential programming or sequential approach followed during programming. Here is an example. Suppose I have taken x equal to 200. So first of all this line will be executed. These are comments lines. They will be ignored by the compiler or interpreter, Python interpreter. X equal to 200 will be executed. Then y equal to 100 will be executed. Then sum will be calculated, that is x plus y. Then print total sum, then sum will be printed. Ultimately, after running this program, Python interpreter will execute this line, then this line, third line, fourth line. This is comment. So at the end of the execution of the program, you will have the result total equal to 300. So this is pure sequential approach being followed. This is called as sequential construct, जिसमें कोई इफ देन ना लगा हो, जिसमें कोई लूप ना लगा हो, इटरेशन ना हो रहा हो, रेपिटेशन ना हो रहा हो, ब्रांचिंग ना हो रही हो. दैट इज व्हाट सीक्वेंशियल अप्रोच.
sequential approach of programming, sequential construct. Second is selection. In this construct, a condition is tested first. If this condition evaluates true, then one block of statements are executed. Otherwise, another block of statements are executed. See, through this flow chart, diagrammatically it can be shown. यहाँ आपने कोई condition test किया, अगर ये condition true है तो इस साइड में जितने भी statement आप लिख देंगे वो सभी execute होंगे and the control will go towards the end of the program. True के केस में ये true का body है. True का body means that means here may be one statement, two statement, three statement, thousands of statements. They can be executed and control will go towards the end of the program. Suppose condition is not true, it is false. Then in another side, another set of program, another set of statements, one or more statements can be written here in this area, and then it will also go towards the end of the program. So this is what called a selection. Selection means based on the given criteria, given condition, one path is selected. Either true path is selected or false path is selected. इसमें alternate programming कर दी जाती है. अगर condition true होगा तो इस path से execute करता हुआ control बाहर निकल जाएगा. अगर condition false होगी तो इस path को follow करता हुआ control बाहर निकल जाएगा. This is what selection construct. Okay, so condition per based out of testing this condition, there are two paths bifurcated, one for true if the condition evaluates true, another for if condition evaluates false. One course of action is performed in case it is false, another course of action is performed in case it is true. So that is what selection construct. अब सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चार तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ देयर आर फोर फॉर्मेट्स ऑफ इफ. नंबर वन इफ, नंबर टू इफ एल्स, नंबर थ्री इफ एलिफ, नंबर फोर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. Let us study one by one with example and syntaxes. First of all, if statement. If का I small होना चाहिए. ये जो है अपने आप हो गया है कैपिटल. Typing mistake. In this statement, if specified condition is found true, then group of statements or one statement is executed. Within its indented block is executed. अगर कंडीशन ट्रू है तो जो इसका देन का इंडेंटेड ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा. जैसे यहाँ देखिए सिंटैक्स में इफ, ये एक्सप्रेशन मींस कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन है ये. अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ कॉलन आना चाहिए. हियर देयर शुड बी ए कॉलन, इट इज लेफ्ट, ये छूट गया है कॉलन. यहाँ आप कॉलन समझिए, इफ एक्सप्रेशन देन कॉलन. तो ये स्टेटमेंट, ये मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक विच इज इंडेंटेड आफ्टर फोर स्पेस. इफ के अलाइनमेंट से, इफ के इंडेंटेशन से अंदर की तरफ चार स्पेस छोड़ करके या एक टैब स्पेस छोड़ करके आपका ये सारा एक ही कॉलम पर इंडेंटेड होना चाहिए. तो ये सारा जो स्टेटमेंट जितने भी लिखे हैं दे विल बी द पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ का ये ब्लॉक कहलाएंगे. तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर के जो इतने भी इस ब्लॉक में स्टेटमेंट्स हैं दे विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल सिंपली क्या कहाँ चला आएगा? ब्लॉक से बाहर. ब्लॉक से बाहर का मतलब इस इंडेंटेशन से बाहर, यानी कि अपने पिछले इंडेंटेशन पर जहां से इफ आप लिख रहे थे. यहां पर जो भी स्टेटमेंट होंगे दे विल बी एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल विल मूव फॉरवर्ड. यानी कि ये सिचुएशन अगर फॉल्स होती है तो कंट्रोल इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक. जो आपका ये इंडेंटेड ब्लॉक है इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रादर इट विल कम आउट ऑफ दैट ब्लॉक एंड विल फॉलो फर्दर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर दिस ब्लॉक. सो दिस इज व्हाट सिंपल इफ स्टेटमेंट. ब्लॉक का मतलब होता है सेट ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स इंडेंटेड एट ए कॉलम.
which is 4 space और 1 टैब स्पेस इनसाइड द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अंदर की तरफ 4 स्पेस या एक टैब स्पेस को हम इंडेंटेशन पर एक कॉलम पर इंडेंट करते हैं, वो एक ब्लॉक कहलाता है। इट मे हैव 1 स्टेटमेंट, इट मे हैव मोर स्टेटमेंट्स। नाउ इसका देखिए सिंपल सा प्रोग्राम इफ का। x मैंने एक इनपुट दिया है, अगर x ग्रेटर देन 0 यहाँ पर कॉलन आएगा, एज आई टोल्ड यू दैट इट इज फॉरगॉटन ओवर हियर, यहाँ पर। तो ये कॉलन के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका जो इंडेंटेड ब्लॉक है ये है, जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है x इज पॉजिटिव। फिर से एक इफ लिया, इफ x इज लेस देन 0, एज मेनी कंडीशंस एज मेनी इफ यू कैन इम्प्लीमेंट। और हर इफ में थोड़ा आप इसे इंडेंटेड करेंगे अगले 4 स्पेस के बाद, और वहां पर इसकी कोडिंग कर देंगे। अभी तो यहां मैंने प्रिंट लिखा, यू कैन राइट सो मेनी स्टेटमेंट्स इन दिस if required. It will depend upon the type of problem. So if x is less than 0, then print x is negative. If x equal to 0, that means x is exactly equal to 0, then print it is 0. तो यहाँ पर 3 if लगे हुए हैं और सिंपल if लगे हुए हैं। अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो it enter a number, it is asking a number, suppose I enter 12, so 12 is positive is the answer. x is greater than 0, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। Then again executed, enter a number, I have written -45, so -45 is negative. अब कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? आफ्टर इनपुटिंग एंटर, ये कंडीशन नहीं थी तो इसको इग्नोर कर दिया उसने। x इज लेस देन 0 था, इसको एक्सेप्ट किया, ये ट्रू मिला, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। x मीन्स -45 इज नेगेटिव, दिस इज द आंसर कमिंग आउट। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट टाइम हमने रन किया, x की वैल्यू 0 इनपुट की, सो इट विल बी इग्नोर्ड, दिस ब्लॉक विल बी इग्नोर्ड because they are not true. X equal to 0 is found true, then it will write it is 0. So your answer is coming, it is 0. Next is if else statement. This is second format of if. If का यहाँ I small ही रहेगा, remember it should not be capital, it is typing mistake, typing error, और ऑटोमेटिकली ये कैपिटल हो जाता है फर्स्ट लेटर। इन दिस स्टेटमेंट इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज फाउंड ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू मिलती है, देन द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन इट्स इंडेंटेड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका जो इंडेंटेड ब्लॉक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट एक इंडेंटेशन पर लिखेंगे, दे विल बी एग्जीक्यूटेड। दिस इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। ट्रू ब्रांच है ये इसकी, इसे कहते हैं ब्रांचिंग। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम ब्रांचिंग भी कहते हैं। अदरवाइज कंट्रोल एग्जीक्यूट्स अनदर अल्टरनेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल एल्स में आ जाएगा। एल्स वाला पूरा ब्लॉक, ये जो पिंक लेटर में लिखा हो, पिंक स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे सेम इंडेंटेशन पर, वो सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और सेकेंड थिंग क्या है, दिस इज फॉल्स ब्रांच। फॉल्स ब्रांच है ये आपका, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, पिंक वाली ब्रांच। कंट्रोल कहाँ जाएगा? वेयर विल द कंट्रोल गो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस ब्लॉक और एग्जीक्यूटिंग दिस ब्लॉक? अगर ट्रू हुई तो इतना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ग्रीन कलर का जो स्टेटमेंट है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द कंट्रोल विल गो आउटसाइड द इफ ब्लॉक फॉलोइंग अदर स्टेटमेंट्स रिटन आफ्टर इफ। Okay, and if condition is false, this will not be executed, green block will not be executed, else block, that is this pink block, will be executed and control will go outside the block directly. इसके बाद else के बाद ये यहाँ आना ही है, इसके बाद ये जंप नहीं बल्कि सीक्वेंस में चलेगा और यहीं पर आएगा else के बाद, लेकिन यहां पर जंप करता है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ट्रू ब्लॉक, ट्रू ब्रांच, इट विल ऑटोमेटिकली गो बिलो if statement. I think you have understood the working and syntax of if
else statement. Now its demo is given here to check even or odd number, whether the given number is even or odd. X I have given as input, int input, enter a number. If x percentage 2 is equal to 0, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाए, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, अगर वो 0 आता है then you are printing x is an even number, else you are printing x is an odd number. Else means it will have the remainder either 0 or 1 only. So there are two cases only, if remainder is 0, another case is if remainder is 1. So you are testing if x percentage 2 is equal to 0, then printing x is an even number. Else में automatically understood है कि वो remainder 1 होगा. So that is why it is printing x is an odd number. Is an odd number will appear as it is and value of x will be substituted here whatever you have entered. So you can see the execution, enter a number 50, answer is coming 50 is an even number. 50 is an even number करने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, it will go outside the block, यहाँ end of the program पर आ जाएगा. इसके बाद अगर फर्दर कुछ प्रोग्रामिंग है तो उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा. enter a number, I have entered 63 which is odd, so x ये 0 नहीं आएगा, else में जाएगा, else में x is an odd number लिख करके उसके बाद फर्दर नेक्स्ट लाइन पर जाना ही है, that will be outside the if block, if के बाहर निकल जाएगा. 63 is an odd number. So this is how if else statement works. Got it? Now little complex statement if elif. If elif जावा में इसको if else if लिखा जाता था. In Python it is written if elif statement. This statement is used in the situation where out of multiple conditions only one condition is true and the rest of the conditions are false. अगर अभी तक आपने देखा था पिछले स्टेटमेंट में यहाँ पर केवल एक कंडीशन थी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो एक टास्क परफॉर्मेंस, if that condition was false then else block was being executed. Although there were two alternate tasks being done. In case of condition is true, one task, in case of condition is false, another task. But here multiple tasks can be defined in multiple conditions, but multiple conditions will be exclusive. Exclusive means when one condition is true, its block will be executed, rest of the blocks will be ignored completely and control will go outside the if statement. यहाँ देखिए, in case a condition is found true then the associated block of statement are executed and the rest of the condition tests and blocks are completely ignored from execution and control follows the if elif statement. और control follow करेगा if elif statement को बाहर निकल करके following statement. following statement का मतलब if elif से बाहर कुछ प्रोग्रामिंग अगर है तो that will be executed. That's why it is also called multiple exclusive conditional statement. That's why WHY in place of WAY, typing mistake. इसलिए इसको हम मल्टीपल एक्सक्लूसिव कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं. मल्टीपल कंडीशंस आर देयर. Exclusive means when one condition is true, that block will be executed. The rest of the conditions will not be tested and they will be excluded. If elif 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 करते हुए बहुत सारी कंडीशन आप डिफाइन कर सकते हो. लास्ट में आप else ब्लॉक भी दे सकते हैं. इसमें अगर कोई कंडीशन, सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो कंट्रोल else ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा. इफ ये नहीं ट्रू है, ये भी नहीं ट्रू है, अगली भी नहीं ट्रू है, अगली elif ट्रू नहीं है, all elif conditions are false, then control simply executes else block. else block अगर आपने उसमें लिखा है तो, अदरवाइज else block लिखना ऑप्शनल है. आप चाहें तो else स्टेटमेंट if elif में नहीं भी लिखेंगे then also it will work.
ओके अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, नथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपने एल्स नहीं लिखा तो, अगर आपने एल्स लिखा, इफ ऑल कंडीशंस टेस्टेड विल बी फॉल्स, will evaluate to false, then it will automatically go to else block। यहाँ भी सिस्टम वही है कि जो कंडीशन ट्रू है उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके कंट्रोल बाहर। एलिफ ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई फर्स्ट तो एलिफ में जाएगा, इसको टेस्ट करेगा, अगर ये ट्रू मिली तो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके आउटसाइड, ये पाथ दिया हुआ। सिमिलरली if it is also false then it will go to test another condition, if it is found true तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करके बाहर। if all elif conditions are found false then it will go to else block, it will be executed and outside the block। if there is no else block then nothing will be done। so this is the working of if elif statement। let us see an example। सपोज मैं चाहता हूं कि मैं डे नंबर डालूं और उसका करस्पॉन्डिंग डे नेम आ जाए, वीक डेज जो आपके संडे मंडे ट्यूसडे, सपोज संडे इज 1 एंड सैटरडे इज 7। तो मैंने यहाँ पर डे नंबर इनपुट किया, टेस्टिंग किया, इफ कंडीशन, इफ डे नंबर इक्वल टू 1 कंडीशन हो गई, देन स्टेटमेंट क्या लिख रहे हो आप, प्रिंट संडे। अगला एलिफ लगाए, एलिफ कंडीशन, एल इफ डे नंबर इक्वल टू 2, then this statement, one or more statement, I am writing only one statement, print Monday। similarly if elif day number equal to 3, print Tuesday, day number equal to 4, print Wednesday, and so on। last one, elif day number equal to 7, print Saturday। सैटरडे तक हो गया कंडीशन टेस्टिंग, 7 कंडीशन टेस्ट की गई। अगर ये सातों फॉल्स हो जाती हैं तो कंट्रोल को एल्स में जाना चाहिए और एल्स में हम लिख देंगे क्या, प्रिंट आई डोंट नो। या आप, दैट मीन्स आपने इनपुट कुछ गलत किया है, यू हैव गिवन द इनपुट आइदर 8 और 9 10 एंड सो ऑन, ग्रेटर देन 7 दिया है या लेस देन 1 दिया है। सो दैट इज वाई दिस मैसेज विल अपीयर आई डोंट नो। या यहाँ पर आप कोई भी मैसेज, अप्रोप्रिएट मैसेज यू कैन पुट, इनवैलिड इनपुट, इनकरेक्ट इनपुट, वॉट एवर, प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 7 ओनली, इनकरेक्ट, है ना, इस तरह का कोई भी मैसेजिंग यहाँ पर आप एल्स में डाल सकते हैं। बिकॉज इन केस ऑल दीज 7 कंडीशंस आर फाउंड फॉल्स देन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। एल्स ब्लॉक में आप एरर शो कर सकते हैं, सॉरी यू आर नॉट एंटरिंग करेक्ट वैल्यू विद इन 1 to 7। तो इस तरह से आप इफ एलिफ को हैंडल कर सकते हैं फॉर मल्टीपल एक्सक्लूसिव कंडीशंस एंड मल्टीपल एक्सक्लूसिव टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड। क्लियर। अब यहां पर मैंने जैसे इनपुट किया 6 तो ये दे रहा है फ्राइडे, और जैसे ही मैंने 8 इनपुट किया तो लिख रहा है आई डोंट नो। सो इन दैट वे यू कैन गेट एनी आउटपुट इफ यू आर राइट इनपुटिंग। अगर आप एंटर करेंगे 2 तो ये आपको मंडे देगा, इफ यू एंटर 3 इट विल गिव ट्यूसडे एंड सो ऑन अप टू 7। if you give something minus, if you give something greater than 7, it will always give I don't know। okay, now in nested if statement, this is the fourth format of if statement। what does it mean, what is meaning of nested if? Enclosing complete body of one if statement within another if statement is known as nested if statement। किसी एक इफ स्ट्रक्चर के अंदर, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ को कंप्लीटली इनक्लोज कर देना, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एल्स ब्लॉक में भी आप चाहें तो इफ को इनक्लोज कर सकते हैं, दूसरा इफ डाल सकते हैं, इफ के अंदर इफ को आप कंप्लीटली इनक्लोज कर दें, दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जो आउटर इफ स्टेटमेंट होता है उसे पेरेंट इफ कहते हैं, जो इनर इफ स्टेटमेंट होता है उसे चाइल्ड इफ कह सकते हैं आप। See, what is the structure? What is the syntax? If condition then colon, उसके अंदर फिर से आप एक if लगा देते हैं, condition then colon। अब इस if के अंदर की ये statements हैं दोनों, because they are indented in the same column। See, these are the statements written in else block। और ये else किसका है, आउटर इफ का else है, बिकॉज देयर इंडेंटेशन इज सेम।
और इसका इंडेंटेशन अंदर की तरफ है इनर साइड में, तो इस इफ के अंदर ये दूसरा इनर इफ हुआ, और इस इफ के जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों हैं। दिस इज द ब्लॉक ऑफ इनर इफ। ओके, और एक चीज और यहाँ हमने this syntax is stating that in Python a colon is mandatory after declaring if else if statement, elif statement। if की लाइन में यहाँ कॉलन होना जरूरी है, if की लाइन में कॉलन होना जरूरी है, else में ये कॉलन होना जरूरी है, elif में पिछले आपने स्लाइड्स में देखा था वहां भी कॉलन होना जरूरी था elif में। so this is the point you should remember। ये आपका जो ये है इस इतना पोर्शन ये नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर इफ है। इन पाइथन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद इफ, एल इफ और एल्स स्टेटमेंट यूजिंग इंडेंटेशन। आप इंडेंटेशन का इस्तेमाल करके एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 विद इन दिस इफ इज इंडेंटेड एट ए कॉलम। ये कॉलम की डिस्टेंस यहाँ से एक टैब स्पेसिंग होती है या 4 स्पेस होता है। ओके, इस एल्स के अंदर का ये ब्लॉक है, दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4, यहां से 4 स्पेस है इसकी डिस्टेंस। ऑलराइट, सो दिस इज द ब्लॉक ऑफ एल्स, दिस इज द ब्लॉक ऑफ दिस इनर इफ, एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ दिस आउटर इफ। ये वाला जो है आउटर इफ का ब्लॉक है, इनर इफ इज द ब्लॉक ऑफ आउटर इफ। सो दिस इज व्हाट पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। Although in IP it is not part of curriculum, nested if will not be asked in informatics practices, may be asked in computer science of class 11th. See an example of nested if. I have taken a number, first number, I want to find out the largest of 3 given numbers. 3 numbers दिए हैं उसमें से largest पता करना है हमें। So I have entered 3 numbers, first एक वेरिएबल फर्स्ट लिया, उसमें मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट कर दी, सेकंड में सेकंड नंबर इनपुट कर दी, थर्ड में थर्ड नंबर इनपुट कर दी। नाउ लॉजिक जहां तक इसका कहता है, मैं आपको पहले फ्लो चार्ट इसका बता चुका हूं। अगर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड एंड फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड आल्सो, देन फर्स्ट इज द लार्जेस्ट नंबर। second number is greater than first and second number is greater than third also, then second number is the largest number. Similarly, third number can also be find out as the largest number. Now चेकिंग इफ स्टेटमेंट का इंप्लीमेंटेशन, इसमें नेस्टेड इफ लगा हुआ, देखिए ये आउटर इफ है, पेरेंट इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, देन अगेन टेस्टिंग इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड आल्सो, देन लार्ज इज ए वेरिएबल, लार्ज इक्वल टू फर्स्ट। नाउ मूव फ्रॉम हियर, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड but first is not greater than third, that means else, then large equal to third। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, पहली नंबर दूसरी से बड़ी है, और यहाँ इनर वाले से क्या पता चल रहा है, पहली नंबर तीसरी से बड़ी नहीं है तो एल्स में जाएंगे। तो अगर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड बट फर्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड, देन एल्स में जाकर के लार्ज इक्वल टू थर्ड लिखेंगे। सो दिस इनर इफ इज कंप्लीटेड। ये इनर इफ का आप देख रहे हैं, इफ भी हो गया, इफ का ब्लॉक भी हो गया, एल्स का ब्लॉक भी हो गया, ये इनर का है। अब आप आउटर के इफ के एल्स में आ जाइए। आउटर इफ के एल्स में आने का मतलब क्या है, यहां पर टेस्टिंग थी फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, अगर ये नहीं मिला तभी वो एल्स में जाएगा। और इसका ना मिलने का मतलब क्या है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड का अपोजिट क्या हुआ, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एल्स। सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी आर कंक्लूडिंग दैट सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। कमिंग टू एल्स, नाउ आई एम कंपेयरिंग, इज सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ऑल्सो। अगर सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड भी मिल जाती है तो लार्ज इज सेकेंड, और सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड नहीं मिलती है तो लार्ज इज थर्ड। सो दिस इज द लॉजिक हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। अब इस एल्स के अंदर भी आप देख सकते हैं अगले इंडेंटेशन पर, इस एल्स ब्लॉक में भी एक इफ बाइंड किया गया है, इसके अंदर एक इफ बाइंडेड है। ओके, विद इन एल्स ऑल्सो वन इफ एल्स बाइंडेड, एंड विद इन इफ ऑल्सो अनदर इफ एल्स बाइंडेड। सो दिस इज व्हाट नेस्टेड इफ। ये पूरा कंप्लीट इफ का बॉडी इफ एल्स के साथ इसके अंदर बंधा हुआ है, इफ के अंदर, एल्स के अंदर भी कंप्लीट इफ एल्स का बॉडी इनक्लोज्ड है। So that is what nested if.
So after coming out of this segment of nested if, large is a variable which is holding the largest number that can be printed on this indentation. Beginning के indentation पे आकर के आप print कर सकते हैं the largest number is large. Whenever this program is executed, we have to test this program from all angles. पहले हम लोग फर्स्ट नंबर यहाँ थर्ड पोजीशन पर दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 3 नंबर इनपुट की, तो लार्जेस्ट नंबर उसने बता दिया 41. दिस वाज गिवन ऑन थर्ड लोकेशन, थर्ड पोजीशन. अगर अब की इसमें बड़ी जो है मैं फर्स्ट पर दे रहा हूँ. फर्स्ट नंबर इज 400, सेकेंड नंबर 200, थर्ड नंबर 300. सो स्टिल इट इज गिविंग द लार्जेस्ट नंबर 400. अभी भी करेक्ट आंसर आ रहा है. एक बार लार्जेस्ट नंबर को मिडल में देके देख लीजिए. First number 500, second number 600, third number 400. Still it is giving the largest number is 600. So in all three cases, after testing this execution of the program, in all three cases, in all three places, if I give the largest number, the program is calculating the exact correct largest number. So that means our program is okay. So now this is the example of nested if. If you have liked this video, please like, share and subscribe the channel, as well as video can be shared with your friends also. इसके बाद जो अगला iteration construct है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जिसे हम looping कहते हैं. So looping is going to be discussed in next coming video. So please like, share the video with your friends, as well as subscribe the channel if you have not subscribed yet. Thank you for watching. Thank you very much.